Welcome back everyone to our channel Markets by Ajit. We are going to discuss about exchange traded funds, that is ETF. People nowadays are talking a lot about ETFs and that's why I have decided that I will create a dedicated video on ETFs and हम लोग यहाँ पे आज discuss करने वाले हैं more than 5 better available ETFs in markets from different categories. Moving further, we are also going to discuss about mutual funds, underrated mid cap and small cap stocks also on this channel. So make sure you subscribe this channel and don't forget to share it with your friends who are building a portfolio for the long term duration. We will start with understanding what is ETF. ETF का full form होता है Exchange Traded Funds. Generally ETF एक pool of investment होता है जो basket of assets यानी stocks हो गया, bonds हो गया या फिर different commodities के अंदर invest करते हैं. So once you invest in a ETF, you are indirectly investing into different classes of assets all at once. Now you will think कि mutual funds और ETF के अंदर क्या difference होता है, तो हम लोग उसके ऊपर भी आते हैं, but उससे पहले कुछ और important points समझते हैं ETF के बारे में. अगर आप अपने म्यूचुअल फंड में कभी भी एसआईपी या लंप सम के मोड से इन्वेस्ट किया होगा तो यू वुड बी नोइंग कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद सेटलमेंट साइकिल्स एंड रिडेम्पशन साइकिल्स के थ्रू जाना पड़ता है, बट वहीं पे ईटीएफ्स एक नॉर्मल स्टॉक की तरह या फिर शेयर की तरह हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि आपको ट्रेडिंग आवर्स के अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. आप जब चाहे तब उसे ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो या सेल भी कर सकते हो. इसी के साथ एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड होते हो, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, और अगर निफ्टी 50 डाउन जाता है तो आपको ये रिएक्शन आपके म्यूचुअल फंड के अंदर एंड ऑफ द डे पे दिखता है, बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर ये सारे डिफरेंसेस साइमल्टेनियसली दिखते हैं रियल टाइम मार्केट के अंदर. अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ईटीएफ के बारे में बात करें तो आपने सुना होगा निफ्टी 50 ईटीएफ यानी कि एक इंडेक्स ईटीएफ, फिर आपने सुना होगा गोल्ड ईटीएफ विच इज अ कमोडिटी ईटीएफ, आपने सुना होगा पीएसयू ईटीएफ, पब्लिक सर्विंग अंडरटेकिंग बैंक्स ईटीएफ. इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ ईटीएफ कैटेगरीज आते हैं इंडियन मार्केट के अंदर जो हम लोग आगे चल के डिटेल में समझने वाले हैं. इसी के साथ हम लोग हर एक कैटेगरी के अंदर से एक बेस्ट ETF को भी पिक करने वाले हैं. Now the major question, why we should invest in ETFs? ETFs hold the most important criteria, that is diversification. आप जब भी ETF के अंदर ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, you directly invest into a diversification model. For example, if you are investing into Nifty 50 ETF, you are indirectly investing into top 50 companies of India just with the help of one single investment. Second and very major difference or importance of ETFs is that they are managed at a very low cost compared to म्यूचुअल फंड्स. एंड लास्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी, यानी कि आप ट्रेडिंग आवर्स के अंदर कभी भी इनको बाय या सेल कर सकते हो, एंड इफ यू आर अ ट्रेडर आप इनको ट्रेड भी कर सकते हो टू गैदर अ क्विक मार्जिन और क्विक प्रॉफिट इन रियल टाइम इंट्राडे बेसिस. सो दैट्स ऑल अबाउट ETFs. नाउ लेट्स जंप ऑनटू द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ETFs, दैट इज इंडेक्स्ड ETF. टॉकिंग अबाउट इंडेक्स ETFs, आई विल चूज द वेरी फर्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ETF in index sector, that is Nifty 50 index. For example, if you are willing to invest in large cap companies and also the most stable companies of this economy, you should definitely go for Nifty 50. And for that, I will definitely choose Nifty Bees, which is backed by Nippon Asset Management Company. It is one of the largest ETFs in India. It is also managed by one of the best AMC companies in India. That is why it is my very first priority and first choice to enter into markets. It generally targets the broad market. It runs simultaneously to the Nifty 50 index. It is almost 10% down from its all-time high. So I think this is one of the best time to accumulate this Nifty 50 Bs in your portfolio for long-term duration for coming 3 to 5 years at least. Now, this Nifty 50 ETF is one of the most stable ETFs. मेरे जैसे risk taker person के लिए mid cap में मैंने choose किया है Zerodha का mid cap 150 ETF. It is one of the recently launched by Zerodha's AMC, one of the most trusted companies in India in terms of asset management because they are very new, young age brain to back your money. That is why I am betting on to Zerodha's mid cap 150 ETF. अगर थर्ड इंडेक्स के बारे में बात करूं तो स्मॉल कैप, यहाँ पे मैंने चूज किया है HDFC स्मॉल कैप 250 ETF. अगेन टारगेटिंग स्मॉल 250 कंपनीज बट मोस्ट प्रॉमिसिंग फॉर फ्यूचर. इफ यू आर अ हैवी रिस्क टेकर, आप मिड कैप में ज्यादा अलोकेट कर सकते हो, निफ्टी 20 के अंदर कम कर सकते हो. आप अपने रीबैलेंसिंग को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कंट्रोल करना, बट यू शुड ऑलवेज एक्सपोज योरसेल्फ टू अ डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, दैट इज कमोडिटी ETF. अगर मैं कमोडिटी ETF के बारे में बात करूं तो वी आर हैविंग टू मेजर ऑप्शंस टुडे. फर्स्ट वन इज गोल्ड बीज, जो अगेन निपॉन AMC की तरफ से आता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गोल्ड ETF इन इंडिया, वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्ड ETF AUM होल्डर इन इंडिया. तो यहाँ पे आप गोल्ड बीज यानी कि निपॉन AMC के गोल्ड ETF के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो. इसके साइमल्टेनियस में मैंने टाटा के गोल्ड ETF के अंदर बेट किया है. आप पूछेंगे टाटा अचानक से क्यों आता है, बिकॉज इसके अलावा बहुत सारे AMCs हैं, जैसे ICICI है, एक्सिस है, HDFC है, SBI है. टाटा इज ऑल्सो फेमस फॉर सेवरल बिग ज्वेलरी ब्रांड्स इन इंडिया. आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि अगर आगे चल के ऐसे कोई भी नॉर्म्स आते हैं कि आप
ईटीएफ्स को भी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो, तो आई थिंक टाटा विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि मुझे डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड भी मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस, मैं यही जानता हूं कि हमें गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, एंड टाटा गोल्ड ईटीएफ इज माय सेकेंडरी ऑप्शन आफ्टर निपॉन्स गोल्ड बीज। अगर बात करें कमोडिटीज की, तो लास्ट ईयर सबने देखा सिल्वर कितना तेजी से ऊपर जा रहा था, तो अगर आपको सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना है, अगेन सिल्वर बेस्ड जो वापस से निपॉन एएमसी का ही एक पार्ट है, तो आप इसके अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिल्वर या गोल्ड में किसमें ज्यादा पैसा डालना है, किसमें कम पैसा डालना है। सबसे लास्ट में मेरे पास एक ईटीएफ है जिसमें मैंने बहुत ही रिसेंटली पैसा डालना शुरू किया है, दैट इज मिराई एसेट S&P 500 इंटरनेशनल ईटीएफ। लुकिंग एट द डॉलर स्ट्रेंथ, डॉलर जितनी तेजी से रुपीस के सामने स्ट्रांग हो रहा था, एंड उसी के साथ साथ कितने सारे $1 ट्रिलियन कंपनीज यूएस मार्केट के अंदर बने एंड नए लिस्ट भी हुए, आई जस्ट वांटेड टू गेट सम एक्सपोजर टू यूएस मार्केट alongside Indian markets also, and that was one of the main reasons I have also invested in Mirai Asset S&P 500 ETF. अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली चूज दिस ETF also. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो कमेंट डाउन करके पूछ लो, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बता दो, एंड मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।